everyone, all of you out there, welcome to this series, High Scoring Techniques in Verbal Ability section, and I am your English mentor, Sana ma'am. So welcome you to this last session of the series, and I very much hope that you have followed all the previous sessions. So there was a common thread between all our sessions. Actually, the focus was, if you notice, okay, initially we had vocabulary classes, and then especially from the time when I took grammar, I took para-jumbles, and today I'll be taking up para-completions. So what is the common thread? The common thread is, I want you to be logical in your approach and not solve English questions on the basis of intuition. Come out of that gut feeling approach. This looks correct. This may be the right answer. बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि मैम पेपर तो हमारा अच्छा गया बट मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते क्योंकि आप गेस वर्क कर रहे होते हो. जब आप लॉजिकली सोच समझकर ऑप्शंस को इवैल्यूएट करके विद द राइट सेट ऑफ स्ट्रेटजीज विद द बेस्ट अप्रोच क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे then I'm 100% sure कि आपका आंसर बनेगा ही बनेगा. All right. So how should we go about para completion today? ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ. Hi Aditya, hello Chetan. Okay, yes, a technical glitch was there, but not an issue. We're starting afresh. All right. So coming over to para completion, I'm sure you already know this is a very important question type. This has repeatedly appeared in IPMAT year after year. 4 questions coming in straight every time, and even in other exams, BB entrance exams, you will get para completion here and there, right? So para completion में होता क्या है? एक पैराग्राफ है, right? और एक blank होगा. इस blank में आपको right option fill करना है, but ये blank एक entire sentence है, sometimes a very lengthy one. Now, very interestingly, this blank can either be towards the end of the paragraph, it can even be in the beginning, all right? And somewhere it can also be in the middle of the paragraph. समझ रहे हो आप? ठीक है? So, the challenge is कि भाई हम कैसे पता लगाएंगे? How can we anticipate? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ मेरा next sentence exactly क्या होना चाहिए, बता पाएंगे आप? You can guess. Because I'm talking about para completion, obviously my next sentence is going to be something or the other related to para completion. But if I ask you, tell me the exact words, will you be able to answer? Certainly it's going to be very difficult and challenging. इसी वजह से students find para completion extremely daunting. But don't worry, I'm here with the right solution. ठीक है? तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ the best approach. क्या है approach? All right. जब आप रीड करोगे ना तो सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना. The moment you read the paragraph, first of all, identify the idea flow. Then, of course, you must know what is the main idea, and also try to understand what is the tone, whether the writer is positive towards something, is negative towards something, or is neutral. At least इतना तो आपको पता होना ही चाहिए. ठीक है? Alright. So, अब आप ये समझो कि जैसे ही आप ये 3 चीजों को लेके क्लियर होते हो ना, when you understand how has the author actually organized the thoughts, right? तो आपको continuity का sense हो जाएगा. फिर blank चाहे जहां भी आएगा, आप समझ जाओगे कि अब next यही बात आनी चाहिए logically. ठीक है? The next very important thing here is any option that is not aligned with the main idea or is not aligned with the tone has to be eliminated. So any option which does not honor or is out of sync with the main idea or with the tone has to be eliminated, right? Another important thing, elimination is very important. मैंने आपको समझा दिया, I'm not writing it down, बहुत लंबा हो जाएगा वो. Third thing, well, you have to understand, and this is very important, that the closest idea, or I can say the adjacent idea, carries the maximum weightage. For example, ये मेरा पैराग्राफ है और बीचों बीच एक ब्लैंक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको इसके फौरन पहले क्या बात चल रही है,
उसको देखना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो इसके नेक्स्ट वाली जो बात हो रही है ना उसको भी सिंक करे। मतलब you will have to choose an option that would bridge both these surrounding ideas or adjacent ideas, right? अगर शुरू में ब्लैंक है या लास्ट में ब्लैंक है, लास्ट में अगर ब्लैंक है तो इसके फॉरन प्रीसीडिंग क्या बात चल रही थी उसके हिसाब से फिर आपको देखना होगा। But nonetheless, as I keep repeating, that it must be related to the main idea. Another very important point, कोई भी चीज हम रैंडमली इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते अपने पैराग्राफ में। आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी ऑप्शन एकदम अनरिलेटेड तो नहीं मिलेगा, एकदम एलियन आइडिया तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप चूज कैसे करेंगे? वाई बी, वाई नॉट ए, वाई नॉट द अदर ऑप्शंस? आपको ये देखना होगा, इज देयर एनी लॉजिकल प्रेसिडेंट? कोई भी ऑप्शन को जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, इज देयर अ लॉजिकल प्रेसिडेंट? Ask yourself. If I am telling you about a recent discovery, a psychological discovery, right? So the author tells you about the a major or a breakthrough psychological discovery, and then starts talking about its application. अब बीच में सडनली क्या आप दोबारा से वो लॉजिकल डिस्कवरी को रिपीट करेंगे? नो, इट विल मेक इट डिसकंटिन्यूअस। तो एक तो आइडिया फ्लो समझना है, फिर सडनली क्या आप कोई गैजेट के बारे में बात करने लग जाएंगे रिलेटेड टू दैट? मे नॉट बी, क्योंकि लॉजिकल प्रेसिडेंट नहीं। अगर उसके फौरन पहले बोले कि ये गैजेट जो है ये हेल्प करेगा हमको इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने में, तो फिर आप उस ऑप्शन को ला सकते हैं। अगर कोई लॉजिकल प्रेसिडेंट ही नहीं है, कोई रीजन नहीं बनता हमारे पास में, तो वो ऑप्शन इज एब्सोल्युटली अनवारंटेड एंड अनसब्सटैंशिएटेड। So we will not take in any option जो justified ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए ठीक है। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में पैराजम्बल्स में बताया, सेम बात मैं आपको अभी बताऊंगी। पॉइंट नंबर 5, ऑफ कोर्स कीवर्ड्स भी हेल्प करते हैं हमको बहुत ज्यादा एलिमिनेशन में। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कनेक्टिव शुरू में आ गया एक ऑप्शन में देयरफॉर करके, बट आपको लग रहा है कि कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तो है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली आप ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। आर यू गेटिंग मी? सो मेकिंग यूज ऑफ सम कीवर्ड्स इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस स्ट्रैटेजी। सो बेस्ट आप तभी समझ पाओगे जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस वन। IPMAT इंदौर का क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन। लेट्स क्विकली डू दिस। In the late 1960s, architect Charles Fourier began his career as an urban planner, creating New Bombay, an urban area that provided housing and job opportunities for many who lived across the harbor from the original city. पैरा कंप्लीशन में कॉम्प्रिहेंशन इज पैरामाउंट। आपको कॉम्प्रिहेंड अच्छे से करना है। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्लियर नहीं है, यू विल ऑलवेज ऑलवेज सफर। ओके, तो मार्क करते जाइए, मीनिंग को कंडेंस करते जाइए, समझते जाइए। एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने क्या किया? नवी मुंबई को प्लान किया। ही वाज एन अर्बन प्लानर, ठीक है। और इन द मिडस्ट ऑफ ओवर पॉपुलेटेड सिटीज, he tried to create quasi rural housing environments. In all of his urban planning missions, Fourier avoided high-rise housing solutions. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उन्होंने थोड़ा हटके चीजें बनाई है। नॉर्मली थोड़ी सबर्ब्स थे, द मिडल ऑफ द पॉपुलेटेड ओवर पॉपुलेटेड मुंबई से हटके था ये, तो उन्होंने क्वाजी रूरल टाइप की चीजें बनाई जो थोड़ा सा रूरल टच दें, ठीक है। और जितनी भी अर्बन प्लानिंग उन्होंने करी, हर जगह एक चीज दी कि उन्होंने अवॉइड की हाई राइज हाउसिंग। एकदम स्काई स्क्रेपर्स जो होती हैं, द टॉल ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, ही अवॉइडेड दैट, राइट। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? वही मैं आपसे कहती हूँ कि जो प्रीसीडिंग आइडिया है उससे ही एकदम रिलेटेड आपकी बात होना चाहिए। व्हाट शुड बी द आइडिया? द आइडिया शुड बी समथिंग कि वो उसने अगर हाई राइज अवॉइड किया तो फिर क्या बनाया? उसने बनाया
Low-rise buildings. He focused on low-rise dwelling solutions that emphasize the human scale and created a sense of community. एक community का sense जहां पे लोग एक दूसरे से connected हों वो बनाने की कोशिश की. ठीक है. You can very clearly see that other options do not fit the bill, right? यहां देखिए उनकी आर्किटेक्चरल वैल्यू स्पेशली मॉडर्निस्ट यूज ऑफ मटेरियल इररेलेवेंट है कंप्लीटली गया. अर्बन पुअर कहां से आ गया? बिल्कुल ही एलियन एलिमेंट है, आउट ऑफ स्कोप है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी आउट करिए. कंसिडरेशंस ऑफ द इंडियन क्लाइमेट ड्रोव मेनी ऑफ हिज डिसीजंस. अब क्लाइमेट कहां से आ गया? दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है ना? ओके. Another question from IPMAT 23. There's a blank in the beginning. Okay. And then they say conflicts are now brewing over rivers and river basins shared by many countries around the world. This is not unexpected, given the fact that more than 200 water bodies are shared by 2 or more countries. तो क्या बता रहा है? एक ब्लैंक है शुरू में और फिर उसके बाद में आपसे बोलता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है पानी को लेके, रिवर बेसिन्स को लेके अमंग न्यूमरस कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, राइट? और ऐसा क्यों है समझ में आ ही रहा है. वाटर कितना स्कैर्स होता जा रहा है. ठीक है. स्ट्राइफ ओवर वाटर फॉर एग्जांपल इज इरप्टिंग थ्रू आउट द मिडल ईस्ट फ्रॉम द watersheds of the Nile to the Tigris and Euphrates rivers. ठीक? ओके. क्या लगता है आपको आंसर होना चाहिए? कम ऑन क्लास. We can clearly see we have such a wonderful option sitting here with water becoming increasingly scarce and development of new sources of water extremely costly. International water tensions are expected to rise. बहुत प्यारा ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेन आइडिया से तो अलाइन है ही. बाय द सेम टाइम आप देखेंगे व्हाट इज द इमीडिएट थिंग दैट इज देयर आफ्टर द ब्लैंक. इट्स टॉकिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ब्रूइंग एट एन इंटरनेशनल स्केल. And this is what this is talking about. This is telling you water being such a scarce commodity, alternatives being so expensive. Obviously, there's an increasing strife among different countries. International tension है. A looks like just an amazing option. एक बार B देख लें. It might be a cliche, मतलब घिसी पिटी बात, but given how scarce it is, water is the new oil of the 21st century. मैंने आपसे बोला था ऑप्शंस क्लोज होंगे, ऑप्शंस मेन थीम से रिलेटेड होंगे, but then there can only be one perfect answer. We'll have to weigh both these options, option A and option B. While B is only emphasizing on the importance of water, A is telling us about the tensions which are emanating over the scarcity of water. Hence, certainly A becomes a better choice. क्योंकि इसके फौरन बाद में जो बात आ रही है, A ऑप्शन उससे बहुत ब्यूटीफुली सिंक खाता है. ठीक है. सो A ही आंसर होना चाहिए. C अगेन थोड़ी सी टेंजेंशियल बात कर रहा है. ठीक है. और D डेल्टा ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ही जा रहा है. ये तो कह रहा है कि वर्ल्ड तो कंसिडर ही नहीं करता वाटर को स्कैर्स रिसोर्स. तो ये तो हो ही नहीं सकता. मतलब बिल्कुल ही सबसे बेकार ऑप्शन है ऑप्शन डी. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Oh, and this is a nice one. There have been some studies too showing that some religious people can hold spiritual and analytical thoughts in their mind simultaneously. So rather than polar opposites, ठीक है, these researchers found that intuition and analytical thinking may operate as two minds in one brain. Normally it is expected कि जो religious लोग होते हैं वो थोड़े superstitious ज्यादा होते हैं, ज्यादा लॉजिकली सोचते नहीं, ज्यादा एनालिटिकल टाइप के लोग नहीं होते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते, ज्यादा इंट्यूशन पे मेरा मन कर रहा है, मुझे जो सही लग रहा है उस हिसाब से चल रहे होते. बट देन ये बोल रहा है कि कुछ स्टडीज हमें ये बताती है कि रिलीजियस पीपल दे कैन हार्बर बोथ द काइंड ऑफ थॉट्स, दो दे माइट लुक एज पोलर ऑपोजिट्स. They can be very analytical also while being spiritual or religious.
ठीक है, तो ये पोलैरिटीज है ना, ये दो एक्सट्रीमिटीज हैं। अब इसको, इस थॉट को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक हमारी कोई ब्रेन इमेजिंग की प्रॉपर रिसर्च हुई, स्टडी हुई, जिसमें पता चला कि जो लॉजिकल रीजनिंग है, दिस कम्स फ्रॉम दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये जार्गन है, इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं, जस्ट टेक इट लाइक अ टर्म। और जो हमारा रिलीजियस बिलीफ है, वो कहां से आता है? वो एक बिल्कुल अलग रीजन से आता है। ये है वो रीजन का नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए? लॉजिकली आपने ब्रेन इमेज से भी बता दिया उसको कि ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं, बिकॉज दे कम फ्रॉम डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ब्रेन। सो एनीवे, इससे क्या हम बैठ के सोचे कि क्या आना चाहिए? लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ऑप्शंस। लेट्स कम टू द फर्स्ट ऑप्शन। This suggests that there might be a neurological basis, interesting, for the coexistence of spiritual and analytical thoughts within individuals. I think this looks like a wonderful conclusion. कई बार पैरा कंप्लीशन, स्पेशली जब जो ब्लैंक है वो एकदम एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ आता है, इट इज वेरी मच लाइक यू नो कि पूरा जो हमने डिस्कशन किया इससे फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, उस वे में होता है, यू नो, पुलिंग ऑल दिस स्ट्रिंग्स टुगेदर एंड कमिंग टू अ फाइनल आउटकम और अ फाइनल कंक्लूजन दैट व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस डिस्कशन। तो जो आपको पूरी रिसर्च बता रहे हैं, राइट, कि क्या पता चला, तो हमको ये इससे पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल बेसिस है। न्यूरोलॉजिकल बेसिस क्यों है? क्योंकि अब हमको वो ब्रेन इमेजिंग से पोर्शंस भी पता चल गए कि कहां से कौन सा थॉट आ रहा है। तो न्यूरोलॉजिकल बेसिस है कि स्पिरिचुअल और एनालिटिकल थॉट्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। Looks like a wonderful option, right? Very nice, Riya, Divya, Tomar, right? Okay. तो ये definitely आप समझोगे कि this is the right answer. But हम definitely बाकी options भी देख ले, ठीक है? Let's have a look at the other options, right? Satyam, this is the right answer. Ushaswini, that's perfect. Therefore, religious individuals tend to exhibit reduced analytical capacity. What do you think about this option? Is it in sync with the main idea? Is it logical? Is the idea flow proper? Definitely not. क्योंकि हमारा मेन आइडिया ये है कि रिलीजियस लोग भी एनालिटिकल हो सकते हैं। बी ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं, ये तो कम एनालिटिकल है, इसलिए विदाउट अ सेकेंड थॉट इसको एक्सपंज करो, स्ट्राइक इट ऑफ। C option, consequently, analytical thinking inhibits the activation of the right prefrontal cortex, diminishing again. जो प्रॉब्लम बी में थी वही प्रॉब्लम सी में है। आप देखेंगे सी में भी वही मुद्दा है कि ये कह रहा है कि नहीं, एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो रिलीजियस बिलीफ को कम कर देती, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती है। तो सी भी गया। आर यू गेटिंग मी? Option D. This proves the irreconcilable nature of intuition and analytical thinking within the human brain. Again, tone बिल्कुल opposite हो गई, ठीक है? ये कह रहा है कि इंट्यूशन मतलब जो गट फीलिंग होती है, जो ज्यादा लॉजिकल बेसिस पे नहीं होती, एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ये इर्रिकंसाइलेबल है, ये एक साथ नहीं हो सकते, इनका कभी मिलन नहीं हो सकता। जबकि पैसेज तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है भाई साहब। ये क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो ये भी गया। क्लियर कट आंसर है, आंसर है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? ओके, सो लेट्स गो अहेड। अगेन IPMAT का आंसर, सॉरी क्वेश्चन आपके सामने, IPMAT 23 का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिए। Pardon me. The concept of the villa and other European ideas came to Lucknow with foreign soldiers, travelers and adventurers. तो जो विला का जो कॉन्सेप्ट है, ये लखनऊ कैसे पहुंचा? विला वाज अ यूरोपियन आइडिया, और इसके साथ में और भी पैरेलल कुछ यूरोपियन आइडियाज थे जो लखनऊ पहुंचे। कैसे? जो सोल्जर्स होते थे उनके थ्रू, राइट?
travelers or adventurers के through. For the Nawabs of Lucknow, architecture became the physical manifestation of their new status and a way of proclaiming or announcing their alignment to the new power block. So clearly हम समझ रहे हैं that this is the pre-independence era that we are discussing here. जब नवाब होते थे, जब ब्रिटिश सोल्जर्स आया करते थे, तो उन नवाब्स का थोड़ा अलाइनमेंट भी था ब्रिटिशर्स के साथ में. तो उन सोल्जर्स या ट्रैवलर्स के साथ में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ विला है वो आ गया नवाब्स तक. ठीक है. और ये जो आर्किटेक्चर था ये इनको बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था. क्यों? क्योंकि पहली बात तो उनको क्या लगता था कि यार ये तो हमारी स्टेटस, हमारी जो स्टेटस है हम उसको दिखा पाएंगे, शो कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे थ्रू दिस आर्किटेक्चर. And there's a blank. Now this has to bridge the gap between these both ideas, right? यहां से बात शुरू होगी, यहां पे खत्म होगी. आगे का नेक्स्ट आइडिया देखते हैं. Villas hence provided an ideal substitute. Hence क्यों बोला है? Hence क्यों बोला है? थोड़ी सी इसका मतलब कॉज इफेक्ट रीजनिंग यहां पे लगनी चाहिए. ठीक है. किस चीज का सब्स्टिट्यूट और क्यों? ओके. Europe sold to the Nawabs the idea of villas based on designs and publications carried by them and often aided by memory. ठीक है ना? तो यूरोप ने नवाब्स को ये आइडिया दिया विलास का. ठीक है. और वो उससे बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो गए. The building chosen as the prototype for the famous दिलकुशा कोठी was a country house in Northumberland. ठीक है. ऑप्शंस देखते हैं एक बार, खुद समझ में आ जाएगा हमको कि बेस्ट चॉइस क्या होगी. बताइए क्या लगता है आपको? The villa became the backdrop to both the private as well as the court life of the Nawabs. ठीक है. बट क्या आपको लगता है कि यहां पे चीज फिट होनी चाहिए? विलास क्या हो गए, इसमें उनकी प्राइवेट लाइफ, कोर्ट लाइफ सब होती थी, तो ये सब तो बाद में आना चाहिए मेरे ख्याल में. अभी मुद्दा क्या है कि विला क्यों इतने ज्यादा नवाब्स को पसंद आया है ना? Aren't we talking about this? The Nawabs chose to live in villas because they were easier to construct than palaces. ये बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती. Completely illogical. यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है. We will never select an option which does not have a logical basis or a logical precedent. The Nawabs were attracted to European ideas and architecture because of their foreignness. ये फिर भी थोड़ा ठीक हो सकता है, बट ए और बी तो मैं बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करूंगी. एक बार डी देख लेते हैं बिफोर टेकिंग अ फाइनल कॉल. The Nawabs of Lucknow fancied building palaces that resembled British ancestral homes. क्या ख्याल है इस ऑप्शन के बारे में? बताइए. What do you think about this option? Does this look good? I think this looks wonderful to me. Why? क्योंकि देखिए बात कहां पे हुई कि ये इनको अपना एक तरीका मिल गया था अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड, अपनी क्लास दिखाने के लिए, राइट? और फिर यहाँ पे इसको फिट करिए. और इन नवाब्स को दे फैंसीड दीज बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश एंसेस्ट्रल होम जैसे लिखते थे, इसीलिए विला एक आइडियल सब्स्टिट्यूट दे रहा था. किस चीज का सब्स्टिट्यूट? ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. किसका सब्स्टिट्यूट? ब्रिटिश एंसेस्ट्रल होम्स का सब्स्टिट्यूट. इसीलिए डी डेल्टा आंसर होना चाहिए. और फिर आप देखिए बिल्डिंग चोजन एज द प्रोटोटाइप ऑफ द फेमस दिलकुशा कोठी. ये जो एक कोठी थी नवाब की, अगेन आप देखिए वो क्या था, उसका प्रोटोटाइप क्या था? A country house in England, Northumberland. A substitute of a country house of England. Do you see the parallel? Hence the option D. अगर आप इस लेवल पे जाकर एनालाइज करेंगे, you will never go wrong. Aren't we being logical? क्या हम तुक्केबाजी कर रहे हैं? क्या हम अक्कर बक्कर करके आंसर्स मार्क कर रहे हैं? Certainly not. ठीक है. So I hope आपको समझ में आ रही हैं चीजें. अब थोड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है. Let's practice a few more questions and I'm sure you will learn the tricks of the trade.
बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास। चलो इसका तो आंसर मैं एलिसिट करके ही रहूंगी तुम लोगों से। विरांची उनको पसंद था, नवाब्स ऑफ लखनऊ को, और एनीवे इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है विरांची। डू यू अंडरस्टैंड? जो पैराग्राफ में दिया गया है उसके बियॉन्ड हमको जाके सोचना कि भाई वो ऐसा क्यों सोचते थे, वो ऐसा क्यों चाहते थे। पैराग्राफ में दिया हुआ है कि दे वर फैंटेसाइज्ड बाय दैट, एंड उसका एक रीजन ये है उसमें दिया था बिकॉज ऑफ देयर अलाइनमेंट विद द ब्लॉक। एक्चुअली उसमें से कई जो नवाब्स थे वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो ब्रिटिशर्स थे उनसे कोलैबोरेट कर चुके थे, इसलिए दे वांटेड टू शो ऑफ देयर क्लास, okay, that they were elite class and they were aristocratic. Do you understand? That's why there's a blank in the beginning, और उसके बाद में आपको दिखेगा कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इन साउथ ईस्ट एशिया, फॉर एग्जाम्पल, climate and lifestyle factors mean that people spend much more time in shopping malls than Europeans do. Interesting. क्लाइमेट भी ऐसा और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी ऐसे हैं कि लोग बाग शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज कंपेयर टू यूरोपियंस हु माइट गो शॉपिंग वंस अ फोर्टनाइट। देन देयर आर जेंडर वेरिएशंस in the way we shop as descendants of hunter gatherers. Accumulating is in our blood. Yeah, so true, right? Don't we end up hoarding so many things? है ना? Okay. बट हाउ यू गो अबाउट इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर मेल और फीमेल। तो जेंडर प्रेफरेंसेस भी होती है। तो अगर आप क्लियरली देखें तो यहाँ पे क्या बातें चल रही, हम शॉपिंग कैसे करते हैं, राइट? एक तरीके से हमारा जो शॉपिंग बिहेवियर है वो किन किन फैक्टर्स से शेप हो रहा है। हाउ डू वी नो मल्टीपल फैक्टर्स? बिकॉज यहाँ पे बोला गया है आपका जेंडर हुआ, राइट? फिर आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हो, आपका कल्चर कैसा है, राइट? ये सारी बातें। सो क्या लगता है आपको व्हाट कैन बी एन आइडियल ओपनर? ऑफ कोर्स भी बेटा देख लो, इंदौर 2022 का क्वेश्चन है ये, कितना आसान है। कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे दिए हुए कल्चरल फैक्टर्स ही तो हैं। रिटेल स्टोर्स कॉन्स्टेंटली ऑफर प्रमोशनल डिस्काउंट्स टू एंटाइज शॉपर्स। ऑफ कोर्स अनरिलेटेड, बिल्कुल अनरिलेटेड है, यहाँ पे हम डिस्काउंट की कई बातें नहीं कर रहे। बाय एंड लार्ज पीपल एंजॉय शॉपिंग एंड कंपेयरिंग ब्रांड्स एंड प्राइसेस। अगेन वेयर आर वी टॉकिंग अबाउट इट? डजंट मेक सेंस, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग मेन हंट एंड वुमेन गैदर, ये बिल्कुल एक्सट्रेनियस बात है और ये पैसेज के आइडिया फ्लो में फिट ही नहीं होती, ठीक है? और ये एकदम ये बात बाद में आई है हंटर गैदरर, शुरू में हम इससे क्यों ही स्टार्ट करेंगे? डजंट मेक सेंस। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। वेरी वेल डन प्रिया, विरांची, रिया। चलो लेट्स डू दिस वन, कम ऑन। There's a blank in the beginning. और फिर ये बोलता है मोस्टली इट कम्स डाउन टू गुड पीपल स्किल्स, conscientiousness surprisingly didn't play too much into effective leadership. अब आप यहां पे देखिए कि क्या बोल रहा है। conscientious, being conscientious is being very thorough, very systematic, very hardworking, scrupulous, sedulous, okay, meticulous in whatever you're doing, okay? तो ये कहता है सरप्राइजिंगली इफेक्टिव लीडरशिप में conscientious जो है वो उसका ज्यादा रोल नहीं था। यानी हमको अब जाके समझ में आया है कि फर्स्ट सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा था। वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है? और ये कहता है मोस्टली इट कम डाउन टू गुड पीपल स्किल। इट मतलब वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप मोस्टली इज ओनली अबाउट हाउ योर इंटरपर्सनल स्किल्स आर और हाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल स्किल्स डू यू पोजेस। और इसमें कंसाइंशियसनेस का तो ज्यादा रोल है ही नहीं। ऑफ कोर्स वेदर वन इज एन इफेक्टिव लीडर और नॉट डिपेंड्स ऑन द IQ ऑफ द ग्रुप। इंटरेस्टिंग।
आप अच्छे लीडर हो कि नहीं ये भी डिपेंड करता है कि आपके ग्रुप की आईक्यू क्या है. इफ यू हैव ऑल डम पीपल अंडर यू, तब भी आपकी बात उनको समझ नहीं आएगी एंड आपकी लीडरशिप अफेक्ट हो जाएगी उससे, राइट? सो देयर इजंट एग्जैक्टली अ परफेक्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस फॉर अ लीडर टू हैव. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि यू नो इफ यू आर अ लीडर, इफ यू हैव टू बी अ गुड लीडर, यू मस्ट हैव एक्सेप्शनल आईक्यू. इनफैक्ट आपके ग्रुप की आईक्यू भी मैटर करती है यहां पर, ठीक है? सो पूरा डिस्कशन फाइनली आया, इट मेंडर्स around a couple of points and eventually comes down to that there is no perfect IQ for the leader. But blank कहाँ है? शुरू में मैंने आपसे क्या बोला कि जो एडजेसेंट आइडिया, सबसे क्लोज आइडिया, उसकी सबसे ज्यादा वेटेज होनी चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शंस को देख के बताइए क्या बेस्ट चॉइस होना चाहिए. Leadership ability is solely determined by one's level of conscientiousness. क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द पैसेज, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला हुआ है कि कंसाइंशियसनेस का तो कोई रोल ही नहीं है भाई साहब, तो ये तो गया. अल्टीमेटली इफेक्टिव लीडरशिप ऑफन हिंजेस ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स. ये कहां से आ गए इंटरपर्सनल स्किल्स? हैज दिस बीन डिस्कस्ड एनीवेयर? ऑफ कोर्स इट इज. पीपल स्किल्स, इंटरपर्सनल मतलब पीपल स्किल्स. और आप देखो ना, इफेक्टिव लीडरशिप hinges on interpersonal skill, mostly it comes down to good people skill. बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लगता है. सी भी देखते हैं. इंटेलिजेंस प्लेज अ मिनिमल रोल इन डिटर्मिनिंग one's effectiveness as a leader. Now there are two problems why we are not going ahead with C. Number one, शुरू में बात है और ये इंटेलिजेंस वाला जो फैक्टर है सबसे एंड में आया है, तो ये कोहेरेंट या एक स्मूथ फ्लो या एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडिया बिल्कुल भी नहीं. सो वी विल नॉट गो विद दिस ऑप्शन. सेकेंडली, इवन माय passage nowhere says that intelligence plays a minimal role. It says that there is no perfect level of intelligence, but इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर एकदम डम भी हो सकता है, डफर भी हो सकता है, फिर भी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है. प्लीज, दिस इज अ डिस्टॉर्टेड आइडिया. This can't even be inferred from the passage because this is not what the passage is trying to say. Okay, so ये भी गया. The effectiveness of a leader is entirely contingent on the IQ. So of course D भी गया and B beta would be the right answer. I hope this is clear. आ रही है? Can you hear me? All right, so let's take up the next few questions. Again, this might look a little difficult, but it's not. हर चीज जो स्कैरी दिखती है वो होती नहीं है. मैं देखा है बच्चे बहुत ज्यादा ड्रेड करते हैं लेंथी क्वेश्चंस को, but sometimes it's the shorter questions which are the trickier ones. So please read this. There's a blank in the beginning. Enforcing silence cannot solve India's problems. अगर हम सबको चुप करते रहें तो उससे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी. द प्राइम मिनिस्टर is silent on legitimate questions on his government's actions which affect the lives of millions. The finance minister did not mention unemployment or inflation in her budget speech. It is as if these problems do not exist. Her silence does not help crores struggling to afford daily commodities such as milk, vegetables, eggs, cooking gas, oil, or youth facing record unemployment rates. तो you've understood the gist of the passage, right? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. वो यही बोल रहे हैं कि साइलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी देश की. प्राइम मिनिस्टर भी साइलेंट है, ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन नहीं कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को, इन्फ्लेशन को बजट स्पीच में, एज इफ ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो दिस इज एस्केपिज्म. ऐसा नहीं होना चाहिए. अब फर्स्ट ब्लैंक आपको चुनना है, क्या होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? कम ऑन, क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस. हाँ जी,
Okay, let's do it together. Option A, criticism of the government's actions is unwarranted, as the Prime Minister and the Finance Minister have undoubtedly considered all aspects in their decision making processes, ensuring the welfare of the nation. जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि टोन आइडेंटिफाई कर लेना, यहां पे राइटर की टोन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इज नेगेटिव. It is saying that they are enforcing silence. So ये नेगेटिव है. Whereas ये तो नेगेटिव टोन है, यहाँ पे क्या हो गई, बड़ी पॉजिटिव टोन हो गई. यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो सिंक में ही नहीं, तो ये तो गया. क्लियर है? Coming to the next option. Addressing the concerns of the people, acknowledging their questions, and engaging in open dialogue is crucial for effective governance and problem solving. ये सही रहेगा ना, क्योंकि this is setting the basis for what follows in this paragraph. एक तरह से ये state setting कर रहा है, background setting कर रहा है. वो कह रहा है कि जो भी लोगों के concerns है उन्हें address करना चाहिए, ठीक है, उनके सवालों को आंसर करना चाहिए, ओपन डायलॉग होना चाहिए, ये जरूरी है इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए. This looks like a wonderful option. Public questioning of government actions only leads to chaos and confusion, hindering the smooth functioning. ये भी negative जा रहा है. This is contradictory to what my passage is saying. तो ये भी गया. The finance minister's budget speech was meticulously crafted to address the nations, contradictory to the main passage. Answer B, beta. सबका clear है? Yes, Satyam, Priya, Riya, Divya Bharti. Of course, Viranchi, you can have starting like ultimately and stuff like that. बिल्कुल हो सकता है. Though this might not look like an ideal opening, Viranchi, but still this is possible. This is acceptable. Well. Let's do this one. Okay, थोड़ा सा मुश्किल करें. चलो मुश्किल ही करते हैं थोड़ा सा. आसान क्वेश्चंस बहुत हो गए, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस. Okay. Equality before the law would require equality of representation, but certain defendants engage lawyers with expensive and erudite silver tongues, whereas others, impoverished, गरीब, defend themselves with stumbling incoherence. समझने की कोशिश करो ये बोल क्या रहा है. ये कह रहा equality before the law would require equality of representation. मैं गरीब हूं तो मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ बहुत महंगे लॉयर को, तो मैं कोई सस्ता सा लॉयर, या तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, या तो मैं केस से, कोर्ट कचहरी से दूर ही रहूंगी. इफ एट ऑल आई मैनेज, आई माइट हायर समबडी हु इज वेरी इनएफिशिएंट. जबकि द रिच, दे कैन हायर द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स. तो उनके जो लॉयर्स हैं वो एकदम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, जबकि गरीब इंसान है वो अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा. Equality before the law is also undermined by whims, prejudices, and legal interpretations differing from judge to judge, jury to jury. It loses further credibility once we remember that many people lack resources to gain access to the law. तो इसने आपको बेसिकली दो प्रॉब्लम्स बताए. पहली प्रॉब्लम है गरीबी, राइट. इनइक्वालिटी है, आप जब तक समानता नहीं आएगी तब तक आप लॉ के सामने भी समान तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट. देयर आर पीपल हु डोंट हैव एक्सेस टू द लॉ बिकॉज दे आर पुअर. तो दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम उन्होंने ये भी बताया कि थोड़ा सा फ्रॉम वन जज टू द अदर, फ्रॉम वन जूरी टू द अदर, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं जिससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है. ठीक है, उनके कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं, उनके विम्स होते हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है, अब फाइनली आ गए, यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया. क्या होना चाहिए आंसर बताइए. Quickly go through the options, class. The answer should be, oh, many of you say it should be B, beta. तो पहले B ही पढ़ लेते हैं. The variations in legal interpretations and judgments serve as a testament to the inherent flexibility
एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द लीगल सिस्टम। अच्छा, पॉजिटिव तो नहीं, ये बोल रहा है कि लीगल सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अडेप्टेबल है। इज दिस व्हाट माय पैराग्राफ वाज सेइंग? बिल्कुल भी नहीं। Allowing it to evolve and address the unique circumstances of each case, promoting a dynamic and robust legal framework। क्या ये legal framework described in the passage बड़ा strong है, robust है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर मुझे डी सही लग रहा है, एक बार डी पढ़ के देखते हैं। This glaring discrepancy underscores, मतलब highlights, a fundamental challenge to the very notion of justice, where socio-economic disparities not only shape the legal outcomes but also erode the fundamental principle of equality before the law, exposing a deeply rooted inequality within our legal system। ये कह रहा है कि ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये जो डिफरेंसेस हैं अमीर और गरीब के बीच में, इससे पता चल रहा है कि जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं वो कितना ज्यादा लीगल आउटकम को अफेक्ट करती हैं, और ये जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है ना, इसको भी खत्म करती हैं, वीकन करती हैं, बताती हैं कि कितनी इनइक्वालिटी हमारे सिस्टम में मौजूद है। दिस इज जस्ट द परफेक्ट आंसर। व्हाई नॉट ए? ए में एक दिक्कत है। This apparent disparity in legal representation merely highlights the need for more stringent regulations in the legal profession and thereby bolstering integrity of our legal system। डी नहीं होता तो हम ए ही चुनते, क्योंकि ए फिर भी क्लोज है और वो सही बात कर रहा है, लॉजिकल बात कर रहा है। बट द पॉइंट इज that this is simply coming up with some stringent regulations। एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर दो तो वो एक सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है, जबकि यहां पर सिर्फ लीगल प्रोफेशन में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने से कुछ नहीं होगा। ये जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसको हमको कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो इस वजह से डी डेल्टा वो बात ज्यादा अच्छे से कवर कर रहा है। ऑप्शन ए जो इनइक्वालिटी है उसको कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रहा है। जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात है, जो क्रक्स है, जो मुद्दा है, उसको ऑप्शन ए कवर नहीं कर रहा, डी कर रहा है, इसलिए डी राइट आंसर है। ये बोल देता है सी के तो पेरिफेरल इश्यूज हैं, बकवास ऑप्शन, कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर तो साइड वाइड का मुद्दा है, मतलब ये तो कोई बात है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? अब यार कुछ आसान सा भी कर ले, बड़ा भारी भारी कर लिया, चलो शॉर्ट एंड स्वीट कर लो कुछ, ठीक है? लेट्स डू दिस वन। For many centuries, Africa and its people seemed mysterious and even perverse to the rest of the continent itself. Okay, and this is a puzzle. Where had Africans come from? Many answers were proposed, but most of them served only to deepen the darkness. मतलब Africans and Africa in general for centuries बड़े mysterious लगे, बड़े अजीब लगे, पूरी दुनिया को perverse लगे, एक puzzle की तरह। At last, the Europeans resorted to an easy conclusion, and there's a blank। क्या होना चाहिए बताइए? What do you think should be the answer? यानी कि अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक यूरोपियंस ने क्या आंसर निकाल लिया जो एक बहुत ही इजी, उनका इजी वे आउट था। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये कुछ यूरोपियन पर्सपेक्टिव से कही हुई बात होनी चाहिए। इवैल्यूएट करते चॉइसेस को, द सिंपल माइंडेड आंसर्स टू द रिडल ऑफ अफ्रीका हैज लास्टेड राइट अप टू द मॉडर्न टाइम्स। तो ये तो आंसर तो है ही नहीं, व्हाट इज द सोल्यूशन वो तो बता ही नहीं रहा। वो तो कह रहा अभी भी ये कंफ्यूजन परसिस्ट करता है ना, ये रिडल अभी भी है, तो दिस डजंट मेक सेंस। अफ्रीका हैज बीन रीडिस्कवर्ड बाय द स्कॉलर्स। इज दिस द आंसर?
There was this curiosity, confusion, this darkness about Africa. And Europeans have come to a very simple answer. Africa has not been, after all, a land of unrelieved savagery and chaos. क्या ये होना चाहिए? No, this does not go in sync with it. That's right, Ria, Viranchi, Priya. That's the right answer. Bravo. Netra. थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिए. Africans, they decided. यहाँ देखो noun pronoun rule help कर रहा है आपको. They मतलब कौन? Europeans. Africans, they decided, were just savages, inferior beings, and had always been so. उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, कौन है क्या है, ये तो बहुत ही इंफीरियर लोग हैं, ये बाबरिक हैं, ये सैवेजेस हैं, ठीक है ना, और ये हमेशा से ऐसे ही थे. मतलब उन्होंने बहुत ही इजी कंक्लूजन निकाल लिया. Europeans thinking about Africans, talking about them cannot be anything positive. क्योंकि यहां पे भी आपको दिख रहा है ना कि वो उन्हें कैसा समझा जा रहा था, परवर्ट समझा जा रहा था. Who is a pervert? समझते हो ना? तो उस हिसाब से सबसे सही ऑप्शन डी ही रहेगा. तो क्लास, अब आप मुझे ये चीज बताइए कि in the light of all the discussion that we have done and the questions that we have solved, do you feel कि हाँ अब आपको right line of reasoning पता चल गया? Nonetheless, para completion needs a lot of practice. You'll have to solve a couple of questions, right? Very frequently, keep practicing, and always try to understand that there is a logical reason and there is a logical approach for solving English, be it passages, be it para jumbles, be it para completion, or any other question type. Knowledge is important, but at the same time, whenever we speak of eliminating the options, there has to be a logical way out. So intuition से नहीं करना है, बल्कि logic से करना है. So I hope that you learned a couple of things today, right? So that's all from our side. Okay, please like, share, and subscribe. It motivates us, and we will be back with something else that was going to be very fruitful and beneficial for you. Thank you. Bye-bye. Keep studying and stay good.